Hello everyone, beta. In this video we will do function of hairs present in our nasal cavity. So before this video we did about the mechanism of breathing. Clear? I told you there about the structure of the respiratory system and then mechanism. Now afterwards a question arises in our mind that what is the function of the hairs which are present in our nasal cavity. हमारे जो नाक में hairs होते हैं वो हमारी nasal cavity में होते हैं, उनका क्या function है, उनका क्या role है. So beta, whenever we inhale air, clear, to breathe, instead of oxygen this air has so many unwanted particles. Unwanted particles are those which we do not require, like dust, smoke, clear columns. So when we inhale the hairs present in our nose, they just block these unwanted particles. उनको वो कर लेते हैं block, clear, trap कर लेते हैं, and they do not allow to get enter into our respiratory system. Clear? If by chance sometime they may pass, these particles may pass the hairs, then what will happen? Immediately an irritation occurs in our nose. Irritation होती है ना, अगर by chance कुछ अंदर enter कर जाए. So what happen? The irritation occurs at the lining of nasal cavity. हमारे नाक के अंदर जो lining अगर enter करेगी तो वहाँ पे irritation होने लग जाएगी, and immediately we people get sneeze. हम छींक मार देंगे and expel that foreign particles. So the air we inhale has unwanted particles like dust, smoke, pollens, etc. ठीक है? These particles get trapped by hairs present in our nasal cavity. That if sometime these particles may pass the hairs, then these disturb the lining of the nasal cavity. Now beta, with the help of the model, we have to show the mechanism of breathing. Clear? कि मॉडल की हेल्प से किया हम मॉडल बनाएं और उसकी हेल्प से हमने क्या है मैकेनिज्म शो करना है ब्रीदिंग का. ठीक है, वो कैसे शो करेंगे. यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, वाई शेप्ड ग्लास ट्यूब. जैसे वाई शेप है, ये उल्टी वाई है, ठीक है, ये ऐसी हमें ग्लास ट्यूब चाहिए. ठीक है, देन प्लास्टिक बॉटल, दिस इज द प्लास्टिक बॉटल. क्लियर? देन balloons, we have to attach these balloons at the end of the Y-shaped tube. Clear? And rubber sheet, this is the rubber sheet. आपने करना क्या है, what you have to do, you have to take the empty plastic bottle. ठीक है, जो उसकी ऊपर ओपनिंग है वहाँ पे हमने कॉक डाल दिया, and with the help of, and we have to cut the base of that tube, and from the bottom we have to insert the Y-shaped tube. Clear? And at the end of this Y-shaped tube we have to attach two balloons. ये दो balloons attach किए हुए हैं. Clear? अब ये बॉटल खाली था, यहाँ पे हमने क्या किया, with the help of the rubber band we attach a rubber sheet. यहाँ पे हमने rubber sheet नीचे लगा दी. Now what is the working? Pull the rubber sheet down. हमने इस rubber sheet को नीचे खींच लिया. जब हमने इसको नीचे खींचा बेटा, तो यहाँ पे जो ये मैंने लेबलिंग कर दी, ओपनिंग है. ठीक है, वाई शेप ट्यूब. यहाँ से क्या, जब इसको नीचे खींचोगे तो हवा अंदर को आएगी. द एयर गेट इंसर्टेड इन दिस वाई शेप ट्यूब. क्लियर? एंड एंटर्स इनटू द बैलून. बैलून में एंटर कर जाएगी और बलून क्या कर जाएंगे, फूल जाएंगे. द बैलून्स नेक्स्ट स्टेप इज, by doing this the air entered through small opening A and hence balloons get inflated, वो फूल जाएंगे. क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू पुट इट अपवर्ड. पहले हमने डाउन किया था, अब हमने इसको अप किया, ऊपर को कर दिया. नाउ व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस, द एयर गेट एक्सपेल्ड एंड हेंस balloons गेट डिफ्लेटेड. जब हमने इसको अप किया तो हवा जो थी वो सारी बाहर निकल जाएगी थ्रू ओपनिंग ए, और balloons में से हवा निकल जाएगी, balloons get deflated. Clear? So from this activity what we observe, that whole of this model is behaving like lungs. ऐसे होते हैं lungs के केस में, जब हवा एंटर करती है तो lungs क्या करते हैं, they get inflated, वो
बढ़ जाते हैं, स्पेस चेस्ट कैविटी की स्पेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो लंग्स में हवा भर जाएगी। ये क्या है, दीज टू बलून्स क्या है, दीज आर एक्टिंग एज लंग्स, इसमें हवा भर गई। जब हमने एक्सहेल की बाहर निकाला तो ये हवा निकल गई लंग्स से, खाली होगी तो इट विल कम आउट। और इसका क्या है, बॉटम में जो मैंने रबर शीट लगाई है मीन्स डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम मैंने आपको तब भी करवाया था कि जब डायाफ्राम डाउन हुआ है तो क्या चेस्ट कैविटी की स्पेस बढ़ा रहा है, उससे क्या होती है, हमारी एयर एंटर करने में हेल्प करती है, लंग्स में भरने में हेल्प करती है। एंड व्हेन वी गेट इट अप कर देंगे तो द एयर गेट एक्सपेल्ड आउट। सो ये हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, बलून्स आर एक्टिंग एज लंग्स एंड रबर शीट आर एक्टिंग एज डायाफ्राम, क्लियर। सो हेंस रिजल्ट क्या है, दिस इज द mechanism of breathing. So mechanism of breathing can be explained through this model. So beta here question arises again, what we breathe out, कि हम जब breathe out करते हैं, ठीक है, सांस छोड़ते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं, the answer is carbon dioxide and water vapors, clear. So you have to remember this, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, how can we so sure that exhaled air has carbon dioxide and water। अब मैंने आपको बोला कि ब्रीद आउट हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लियर। अब हम कैसे ये श्योर हो सकते हैं, द गैस विच वी आर रिलीजिंग थ्रू आवर माउथ, क्लियर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस श्योरिटी टेस्ट क्या है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। I already told you this in chapter number 6, that is physical and chemical change, कि जब हम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, ठीक है, you have to take freshly prepared lime water in the test tube and you just exhale air on it, अपने माउथ से हवा दो, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में। then what will happen, that if you are breathing out air contains carbon dioxide then it will definitely turns lime water milky. And for water, when you exhale air on the mirror, अब मिरर के ऊपर ऐसे हवा छोड़ो अपने मुंह से, ठीक है, then what you will see, a film of moisture on it, वो भाप से नहीं बन जाती, ठीक है, मॉइस्चर की फिल्म बन जाती है। फिल्म वो वाली फिल्म नहीं है, ये वो फिल्म है कि एक लेयर, थिन लेयर ऑफ moisture forms on it, clear. So this is the surety test for carbon dioxide and water, clear. So next is percentage of oxygen and carbon dioxide in inhaled and exhaled air, कि जितना हम हवा को जो ले रहे हैं अंदर उसमें कितनी परसेंटेज है, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, और जो एक्सेल कर रहे हैं उसमें कितनी है, ठीक है। बेटा इट इज़ बट ऑब्वियस, जो एयर है इट कंटेन सो मेनी कंपोनेंट्स, ठीक है, अनवांटेड पार्टिकल्स तो हैं ही हैं, और भी बहुत सारी गैसेज है। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड विच वी आर रिलीजिंग वो भी तो एटमॉस्फेयर में ही है। सो जब हम इनहेल करेंगे तो उसका भी कुछ परसेंटेज इनहेल करेंगे। इनहेल्ड कितनी ऑक्सीजन जब करते हैं, दैट इज़ 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं बहुत थोड़ी अमाउंट में, दैट इज़ 0.04%, क्लियर। एंड व्हेन वी एक्सहेल्ड, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%। मीन्स आप ये देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है ना, जो वो इनहेल्ड के कंपैरिजन में एक्सेल में ज़्यादा है, वहाँ पे 0.04% थी, इनहेल्ड में एक्सेल्ड में 4.4, मीन्स मेजोरिटी है जो किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की है, ठीक है, एक्सेल एयर में। और यहाँ पे इनहेल 21 ऑक्सीजन की थी और एक्सेल 16.4%।